अभी आप क्या करेंगे ना, ऊपर से आएंगे से आप चलेंगे। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी मिलेंगे, ठीक है। मेरा नाम शाकिर हुसैन है। तो आज मैं यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन में एक डिफरेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, जो है साइबर सिक्योरिटी के बारे में। तो मैं आज ये बताऊँगा यहाँ पे कि किस तरह किसी भी फेस्टिवल के ऊपर जो हैकर्स हैं वो हमें एक लिंक सेंड करके हमारे लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। सर उसी पे सर आज प्रैक्टिकल करके दिखाना है। And today we are here to present a model colonial Mars. Colonial Mars का मतलब है एक ह्यूमन सेटलमेंट अर्थ पे, मार्स पे, जिसमें हमें बताएंगे कि लाइक अर्थ जो लोग हैं वो मार्स पे कैसे रहेंगे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। थैंक यू। which plays an important role in developing a modern and sustainable cities. This model demonstrates how traffic lights on the road networks and smart vehicles can help in reducing traffic jams, preventing accidents and saving time. The inclusion of the hospital building shows the vacancies for emergency service, while the security highlights the digital. Through this project, we want to show that smart transportation system, when supported by science and technology, can make our cities safer, faster and more efficient. Now further my team will Now further I talk about the usage of smart transportation. Smart transportation is for vehicles. It is about building a safer, faster and modern world. It reduces accidents, it saves time, it supports life and supports the future of the modern city. So here we install a sensor. Sensor is the main part of the accident alert system. If anything happens, the sensor detects it and sends a warning and alert, just like a real system. We all know the road accident is one of the major leading cause of a death worldwide. Many people lost their life, not because of the accident itself, it is because of the help doesn't arrive on the time. So we designed the accident alert system to prevent accidents, to save life, to support the humans. सर जब भी हमें अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ये एक तरह का सेंसर है जो एक तरह की अलर्ट्स देता है, जो आपके नियर हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन में जाके विद द हेल्प ऑफ जीपीएस, बिकॉज जीपीएस जो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन शेयर करता है. नाउ फर्दर माय टीम विल एक्सप्लेन अबाउट द If you have questions, you may ask questions. I am Melanie Pandey, a proud student of Jamia Self-Help Department of School Education College. Today we have worked hard to create a model that demonstrates the process of nature farming. We had performed 3 methods of the nature farming. The first one is soil farming, the second one is hydroponics, and the third one is aeroponics. I am here to deliver regarding nature farming. So first of all, let me tell you what is nature farming and what is the main purpose of nature farming. Nature farming is a method of farming that uses no synthetic chemicals or fertilizers, relying instead on natural processes, local resources and ecological balance. It aims to work with nature, not against it. Main purpose: promote a sustainable, eco-friendly and low-cost method of agriculture that ensures healthy food production, improves soil fertility and supports farmers' livelihood without harming the environment. हमने इसमें 3 जो है कैजुअल हमने इसमें अप्लाई किए हैं, तो हम कुछ 2 स्पेशल के बारे में पढ़ेंगे, जो है हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स. हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक एक नई तकनीक है, एक नई होप है प्लांट्स को ग्रो करने की, जिसमें हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो विदाउट सॉइल ग्रो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. अब हमारा जो हाइड्रोपोनिक्स है उसमें एज पर टू आर ट्रेडिशनल फार्मिंग जो हमारी सॉइल फार्मिंग है, हमारे जो हाइड्रोपोनिक्स में 90 से 95% पानी जो है कम इस्तेमाल होता है एज पर टू आर ट्रेडिशनल फार्मिंग. और ऐसा ही सेम है एरोपोनिक्स में 95 से 98% तक पानी हमारा कम यूज होता है एज पर टू आर ट्रेडिशनल फार्मिंग. जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल जो है लैंड भी लिमिटेड है, पानी भी लिमिटेड है, तो इसमें हमारा कितना
इतना बड़ा एडवांटेज है कि हम इसमें पानी बचा रहे हैं, और इवन कि हम डिजर्ट्स में भी कर सकते हैं, इवन इसको स्पेस स्टेशन में भी कर सकते हैं। नासा ने यही दो तरीके हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जाके स्पेस स्टेशन में बनाए, जो कि काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हुए। एक ऐसी जगह जहाँ जीने का अभी तक कोई मनसूबा नहीं बना था, वहाँ पे हमने हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक के होने से हमने क्या एक जीने की एक छोटी सी उम्मीद देख ली। और उसके बाद हम बात करते हैं कि इनमें पानी का इस्तेमाल होने के साथ साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, डेजर्ट्स और स्पेस स्टेशन। ये ऐसे करके बताना मेरे को, क्या फिंगर लगा के बताना मेरे को, फिंगर लगा के बताओ इसके बारे में। हाँ हाँ, इसके बारे में बताइए, इसके बारे में। ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स है ये, और हाइड्रोपोनिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। एक पानी में सॉल्यूशन मिक्स किया जाता है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे प्लांट्स हैं वो जल्दी उगते हैं और हेल्थियर उगते हैं, क्योंकि उनकी डायरेक्ट रूट्स को वो न्यूट्रिशन जाते हैं इसीलिए। और इसमें एज पर टूअर ट्रेडिशनल फार्मिंग जो आजकल हम कर रहे हैं, एज पर टूअर ट्रेडिशनल फार्मिंग, तो इसके कंपैरिजन में उसमें 90 से 95% पानी कम इस्तेमाल हो रहा है। इवन हम इसको स्पेस स्टेशन में, इवन हम इसको डेजर्ट्स में भी कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमारा थोड़ा सा सिमिलर है एरोपोनिक्स। इसमें 95 से 98% तक जो है पानी कम इस्तेमाल होता है एज पर टू ट्रेडिशनल फार्मिंग। और इसमें जो है हमारी जो रूट्स होती है वो हवा में जो होती है हैंग होती है, और उस पर हम डेली इंटरवल्स पे, डेली बेसिस पे एक न्यूट्रिएंट रिच वाटर में स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो है ग्रोथ जल्दी होती है। सो ये हमें एक नई होप देता है प्लांट को उगाने, ग्रो करने की, उगाने की, क्योंकि जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से पानी भी लिमिटेड है, वाटर भी लिमिटेड है और लैंड भी लिमिटेड है। सो ये हमें एक नई होप देता है काफ़ी सारी चीज़ों को उगाने की। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। देखिए, इदारा जामिया ज़ियाउल उलूम में आज ये इनका एनुअल फीचर है। हर साल यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन लगाई जाती है, और साइंस एग्जीबिशन तो बाकी भी कई स्कूलों में लगाई जाती है। यहाँ उसके साथ साथ आज यहाँ पर एक फूड फेस्टिवल भी रखा गया है, और फूड फेस्टिवल में बच्चियों को ये सिखाया जाता है कि लजीज खाने कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि आजकल फास्ट फूड का ज़माना है। लोग घर में खाना पसंद ही नहीं करते, पैक खाना आ जाता है, होम डिलीवरी चल रही है। तो हमारी बच्चियाँ जो है वो इस खाने पकाने के हुनर से जो है वो कहीं अछूती ना रह जाए। तो लिहाजा यहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है, दुनियावी तालीम दी जाती है, साइंस के साथ जोड़ा जाता है, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाता है, और फिर जो हमारी हिंदुस्तानी रवायात हैं उनके साथ भी बच्चियों को जोड़ा जाता है। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर एक फूड फेस्टिवल का भी एहतमाम हुआ है। वहाँ पर हिंदुस्तानी जितने हमारे खाने हैं, जितनी हमारी डिशेज़ हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल हमारी बच्चियों ने प्रिपेयर की हैं। वेज, नॉन वेज और दीगर भी नेचुरल फूड जिन्हें हम कह सकते हैं। तो अभी हमारे असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू जनाब मोहम्मद सईद साहब तशरीफ़ लाए हैं, शकील मलिक साहब हैं, ACD साहब जो है, जो साइंस एग्जीबिशन लगी है, बच्चियों ने बड़ी मेहनत की है, और जितने भी मॉडल्स, साइंस मॉडल्स इन्होंने बनाए हैं, वो इस बात की अक्कासी करते हैं कि हमारी बच्चियाँ जो हैं, बच्चे और बच्चियाँ जो हैं इदारा जामिया ज़ियाउल उलूम की, वो किस कदर जो है वो जदीदियत की तरफ, मॉडर्नाइजेशन की तरफ वो जा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा। जितने भी कई एक ऐसे मॉडल्स यहाँ बनाए गए हैं कि जहाँ पर मेरे जैसे आदमी को भी पता नहीं कि साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में इतनी जो है वो तरक्की हो रही है। तो ये एनुअल फीचर है, और बच्चों में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करने के लिए ये कोशिश रहती है इदारा जामिया ज़ियाउल उलूम की, जहाँ दीनी तालीम दी जाती है, दुनियावी तालीम के साथ साथ जो हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट है बच्चियों के अंदर डेवलप करने के लिए, ये इदारा की एक कोशिश है।